ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿੱਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਉਤੋਂ ਛਿੱਕਿਆ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟੇ, ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਛਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਫੜਿਆ, ਰਾੜ ਫੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਜੰਮੇ, ਤਿੰਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਖੀ, ਸਬਰ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੱਟੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਾਂ ਟਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਬਾ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਦ कपड़े मैं ला के गई हैं उठाने में, पिछले पर जाके मैं नहीं उखाड़ना चाह रही अपना बदन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, किसी गरीब को या मजलूम को जुल्म का निशाना बनाना और ऐसे वाक़यात जो है वो लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। जब कभी किसी ताकतवर का दिल करता है वो किसी गरीब के घर में घुसकर उसको तशद्दुद का और जुल्म का निशाना बनाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया इलाहाबाद के इलाके में, जहां पर एक गरीब दर्जी के घर में घुसकर उस दर्जी को, उसके माजूर वालिद को, उसकी बुजुर्ग दादी को, उसकी वालदा और उसकी बहन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी गरीब दर्जी के घर पर होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो बुजुर्ग खातून, उस दर्जी, मासूम दर्जी की दादी, जिस के घर में घुसकर इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके जो कपड़ों पर अभी भी खून के निशान मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ, अचानक किन लोगों ने हमला कर दिया और क्या वो इनके मना करने के बावजूद भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सब तो पहले माँ जी बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया तुहाडे नाल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਲ, ਗੁਆਂਢ ਆਂਢ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਨੇ ਜਾਏ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਛਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਫੜਿਆ, ਰਾੜ ਫੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ, ਵਾਲ ਪੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਜੀ ਸਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਵੱਜਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਨੀਲ ਪੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਆ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਗਾਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਂਹ ਧਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 3 ਜੰਮੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ। ਉਹਨੇ 3 ਜੰਮੇ, 3 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 3 ਹੋਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਖੀ, ਸਬਰ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? 10-12 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਤਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਧ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਛਡਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿੱਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਉਤੋਂ ਛਿੱਕਿਆ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟੇ, ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। अब ये भी इनका बड़ा एक ना कहते हैं कि बड़े मासूमाना अंदाज में और इल्तिजा है इनके लहजे में
कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो जुल्म उन लोगों ने किया है मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह पर छोड़ रही हूँ। और जो जिसके साथ अल्लाह है, यकीनन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। और जिन जालिमों ने ये कहकर जी कि हमारा तुम्हारे 3 बेटे हो और पोते हो तो हमारे एक के बराबर है, तो हम कुछ भी कर देंगे, ये बड़ा बोल अल्लाह को पसंद नहीं है। और किसके साथ कर रहे हो भाई? एक गरीब माजूर शख्स के साथ, उसकी बुजुर्ग माँ के साथ लहू लुहान कर दिया मार मार के इस बुजुर्ग माँ को भी। वो छोटी बच्ची जो बना रही थी, वीडियो बना रही थी चुप कर, उसको पकड़ा, उसको मारते रहे, उसको जख्मी किया। इस माँ ने जो बात की है वो यकीन करें कि ये इससे इंसान का जो है ना दिल दहल जाता है कि मैं कुछ करन जोगी नहीं, लेकिन मैं अल्लाह से छड़ता है। तो आप जो कर सकते हैं, जिनके हाथ में ताकत है, कानून की कुर्सी की ताकत है, उनको चाहिए कि इस माँ के दर्द का मदावा करें। इस माँ के माजूर जो बेटा जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसको घसीट घसीट कर मारते रहे हैं, उसकी जवान बेटी को मारते रहे हैं घर में घुसकर, उसको भी इंसाफ दें। माएँ और बहनें बेटियां साझी होती हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कभी किसी की माँ बहन बेटी के साथ कोई जुल्म करने का ना सोच सके, और खुदा ना खासा को करता है तो उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। माँ जी, तुसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी वो भी बड़ा ख्याल करते ने बुजुर्गों का, बच्चियां दा। अल्लाह करे। की अपील करना चाहोगे उन्होंने, की करना चाहोगे जो अपने जुल्म के बारे में दसो ना, उन्होंने की जुल्म आ रहा? जुल्म ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 3 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, 3 ਹੋਰ ਜੰਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਦੂਆਂ। तो हुन भी डरांदे धमकांदे ने, हुन की कहंदे ने? ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਿਆ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬਰਾਂਤ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁਛ पर्चा ਕਰਨਾ। दर्ज हो गया ਤੁਹਾਡਾ? पर्चा हो गया दर्ज? FIR पुलिस तावन कर दी भी है? ਆਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। पुलिस तावन कर रही है। हाँ। ये बड़ी खुशाइन बात है जी कि जहाँ पर इनसे हम पूछा है तो पुलिस इसके साथ तावन कर रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। और जो माँ जी को जो जरा मारदा रहा बदबख्त तानू, उन्होंने दसे नहीं मैं तेरी मावा बजावा, मैनू क्यों मार रहा? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਵੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੱਟੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਾਂ ਟਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਦੀ। ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਬਾ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਦ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬਿਠਾਣੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ ਆਪਣਾ ਬਦਨ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਆਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं नहीं ਵਿਖਾਉਣੇ नहीं ਸਾਰੇ सानू पता। मेडिकल हो गया थोड़ा? हैं। हाँ जी, मेडिकल हो करवा लिया गया, जी ना? हो गया। बहरहाल जी ये बता रही है माँ जी, जाहिर वो कह रही है अपने जख्म तो नहीं मैं दिखा सकती, लेकिन हमें पता है इस चीज़ का, लहू लुहान उनके कपड़े अभी तक हैं और ये इंसाफ की जो है मुंतज़िर है। और हम भी यही चाहते हैं कि इस माँ को, इस पूरे ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मासूम बेटी जिसके घर में घुसकर इसके माजूर वालिद को, इसके मासूम भाई को, इसकी दादी को, इसकी वालदा तक को मारा जाता रहा। तो ये उस वक्त वीडियो बना रही थी, जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा हमारे इस प्रोग्राम में ही, जिसमें चीखो पुकार हो रही है क्योंकि नज़र नहीं कोई लोग आ रहे थे, अंधेरा था, बिल्कुल लाइट नहीं थी यहाँ पर। तो ये बच्ची वीडियो बना रही थी। इससे हम बात करते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह इन लोगों ने अपने आप को बचाया। बेटा, सबसे पहले बड़ा अफसोस है जो जुल्म आप लोगों पर हुआ। आप बताओ कि किस तरह, कब ये लोग घुसे हैं और आते किस पर हमला किया, और आपने कब वीडियो बनाना शुरू की? आते ही आए हैं तो हम वीडियो बनाना शुरू कर दी है, और जो उसने मुझे बालों से खींच कर नीचे गिरा दिया, आगे कोई उठा है, उसने मुझे लोहे की उनके पास चीज़ें थी, हथियार वगैरह थे, उन्होंने मुझे मारा है हाथ पे, यहाँ उंगली पे, उन्होंने बहुत जमी कर दी है। ये मेरी दादी को मारा, मेरे अब्बू को भी खींच के बाहर ले अंदर थे, हम बाहर जाते थे खींच के। ये जो वीडियो में आवाज़ आ रही है अबू अंदर आ जाओ, वो आप बोल रही हैं बेटा? हाँ जी। तो वो बाहर ले जाकर मार रहे थे सारे? हाँ जी। कितने लोग थे बेटा? वो 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे? हाँ जी। और वो आए हैं घर में और कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा आते ही मारना शुरू कर दिया? हाँ जी, इतनी गंदी गाली देते आए हैं बाहर से, और आते ही मारना शुरू कर दिया। कितनी देर तक ये मामला चलता रहा सारा? 10-15 मिनट तक चलता उसके रहा। बाद फिर कैसे बचे आप लोग? फिर कोई लोग आ गए तो उन्होंने बचाया हमें। मोहल्ले के लोग आए थे? हाँ जी। अच्छा, तो अब ये बताएं कि मोबाइल आप लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की? हाँ जी, उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश बहुत की है, लेकिन मैंने किसी बच्चे को मोबाइल छोटे को पकड़ा दिया था। उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि आप बच्ची हो, आपकी दादी हैं या आपकी वालिदा नहीं, हैं? उन्होंने ये किसी का ज़रा औरत- लिहाज नहीं किया। औरत और मर्द का कोई लिहाज नहीं किया? नहीं। आते ही उन्होंने मारना शुरू कर हाँ दिया। जी। तो ये आइडिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें थी उनके पास बेटा? हाँ जी, तो उनके पास ये लकड़ी वगैरह के डंडे भी थे,
और ये लोहे के हथियार भी थे। रॉड्स वगैरह भी थे? हाँ जी। बेटा आप क्या अपील करना चाहोगी मरियम नवाज साहिबा से? मेरी बहन नवाज साहब से फील है कि वो हमें इंसाफ दिया जाए। जी इंसाफ की अपील है। हम खुद भी अपील कर रहे होते हैं, नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन इन लोगों से अपील करवाने का मकसद ये है कि शायद इनकी कही हुई बात किसी के दिल में उतर जाए। जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये मासूम बच्ची है अभी, उस ट्रॉमा में उस जो गुजरी है, जो हालात थे यहाँ पर, उस सदमे से ये गुजरी है। जब ये बता रही है जी कि इनको इंसाफ चाहिए, हम यही चाहते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो और जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी